Start with the greatest name of Almighty Allah, who is most kind and most merciful. Assalamu alaikum. Dear friends, today we are going to discuss the democratic states forms, the forms of government, parliamentary form of government and presidential form of government. Before going to the topic, I must request you one thing, that never misconcept it as a forms of state. These are not forms of state, these are forms of government. These are highly mistaken. We are highly mistaken about the forms of state and forms of government. These are forms of government, presidential form of government and parliamentary form of government. इसमें यहाँ तक मिसकंसेप्शन है कि 2021 के जो पेपर 2 है CSS का, उसमें यह सवाल आया था कि parliamentary form of state. It's not the parliamentary form of state, but it's the parliamentary form of government. So today we are going to discuss the parliamentary form of government. Basically, what is parliamentary form of government? Coming to its characteristics and advantages, and today we will be also discussing the demerits and merits of parliamentary form of government. Government in which there exist two separate heads, head of state and head of government. A such government in which government there exist the two heads. One is the head of state and other is the head of the government. Now, what is the head of state and what is the head of government? What we mean by these two terms, two heads? Head of state we call to president or a king. जो किंग होता है या जो प्रेसिडेंट होता है, हम उसको हेड ऑफ स्टेट कहते हैं. और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को. हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है. हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो प्रेसिडेंट या किंग होता है. लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव आर क्लोजली रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हाउ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव बोथ आर interrelated and linked in the parliamentary form of government we are going to discuss. Head of government is elected and dismissed by the legislature. अब जो legislature होता है वो elect भी head of government को करता है और head of government को dismiss भी कर सकता है. ये दोनों powers होती हैं legislature के पास. इसीलिए हम कहते हैं कि legislature और executive जो है वो these both are interlinked, interdependent or one another. कैबिनेट वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट. हेड ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, उसकी सुपरविजन में कैबिनेट वर्क करती है. अब कैबिनेट में कौन आते हैं? उसके मिनिस्टर्स. गवर्नमेंट के जो सारे मिनिस्टर होते हैं वो सारे कैबिनेट में आते हैं और वो सारे अंडर द सुपरविजन ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट दे ऑल वर्क. हेड ऑफ गवर्नमेंट मस्ट बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर. अब जो भी कैबिनेट के मेंबर होते हैं और जो भी हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो सारे के सारे दे मस्ट बी द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर. वो सारे के सारे लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट जिसको हम कहें वो पार्लियामेंट के मेंबर्स होने लाजमी है. ये उनके लिए मस्ट कंडीशन है. जो भी लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होगा, मेंबर नहीं होगा, ही कैन नॉट बी एनी मिनिस्टर, ही कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ द कैबिनेट एज वेल. यूजुअली पार्लियामेंट हैज 4 organs. Which are 4 organs? Head of state, president or king, head of government, prime minister, cabinet in which we include the ministers of the government, and fourth one is parliament. Legislature we commonly call it legislature. In the parliamentary states we call it the parliament. Parliament is basically legislature that makes the laws, and enforcing laws is the organ of government, which is executive. Executive enforces the laws, legislature makes the laws, whereas the judiciary interprets the laws. हेड ऑफ गवर्नमेंट कैन बी फ्रॉम एनी हाउस. जो हेड ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो किसी भी हाउस से हो सकता है. यूजुअली ये कॉमन लॉ है कि वो अपर हाउस से हो चाहे लोअर हाउस से हो. बाई यूनिकैमरल होगा तो वो तो जाहिर सी बात है, एक ही हाउस हो गया, फिर तो हेड ऑफ गवर्नमेंट हेड ऑफ स्टेट बोथ वुड बी फ्रॉम यूनिकैमरल हाउस, फ्रॉम पार्लियामेंट, फ्रॉम लेजिस्लेचर. लेकिन अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसमें अपर हाउस से हो या लोअर हाउस से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से अगर हम डिस्कशन करें तो पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, ही मस्ट बी फ्रॉम द लोअर हाउस. वो इलेक्ट किया जाता है लोअर हाउस से, ना कि अपर हाउस से. अपर हाउस से प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट जो पाकिस्तान का होता है वो लोअर हाउस से होता है, नेशनल असेंबली से होता है. लेजिस्लेचर कंट्रोल एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है लेजिस्लेचर. अब लेजिस्लेचर कैसे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में थ्रू द क्रिटिसिज्म. लेजिस्लेचर को ये राइट है कि वो एग्जीक्यूटिव पे क्रिटिसिज्म कर सकता है, उसके खिलाफ इंक्वायरी कर सकता है किसी भी प्रॉब्लम पे, उसके खिलाफ कोई भी रेजोल्यूशन पास कर सकता है, उससे किसी भी पॉलिसी किसी भी एक्शंस के बिना पर वो उससे सवाल कर सकता है. और वो जो एग्जीक्यूटिव है वो पूरी की पूरी जो कैबिनेट है, जो पूरे के पूरे मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो
आंसरेबल हैं लेजिस्लेचर को। और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तहत लेजिस्लेचर पूरी कैबिनेट को हटा के हेड ऑफ गवर्नमेंट को भी डिसमिस कर सकता है। ये राइट है लेजिस्लेचर के पास। लेजिस्लेचर जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तहत हेड ऑफ गवर्नमेंट को सिलेक्ट करता है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहत जो हेड ऑफ गवर्नमेंट और उसकी कैबिनेट है उस सारी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर सकता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत। लेकिन इसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होती है। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है? टोटल मेंबर्स जो भी होंगे लेजिस्लेचर के टोटल मेंबर्स की 50% से एक मेंबर अगर ज़्यादा है तो वो कहलाएगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 50% + 1। अब जाहिर सी बात है अगर हम देख लें कि 300 मेंबर्स हैं तो 151 मेंबर्स का वोट चाहिए होगा किसी भी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को एक्सेप्ट करने के लिए 151 वोट चाहिए होंगे। अगर 151 वोट मिल जाते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट ओवरथ्रो की जा सकती है थ्रू द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और जो गवर्नमेंट होती है वो होती है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के तहत। ये दो बातें याद रखने वाली हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के तहत जो हेड ऑफ गवर्नमेंट और उसकी जो कैबिनेट है वो बनाई जाती है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत उसको डिसमिस किया जा सकता है। एग्जीक्यूटिव इज ओनली पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर बट आल्सो अकाउंटेबल टू इट। एग्जीक्यूटिव जो है वो ना के सिर्फ पार्ट है लेजिस्लेचर का लेकिन वो अकाउंटेबल है, वो आंसरेबल है लेजिस्लेचर को। जो सारे के सारे कैबिनेट और सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के, वो सारे के सारे मेंबर्स मस्ट बी द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। सारे के सारे जो भी मेंबर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव के वो पार्ट होंगे लेजिस्लेचर के और उसको जवाबदेह होंगे अपनी पॉलिसीज़ के तहत। अपनी जो भी एक्शंस वो इन्फोर्स करेंगे इन द स्टेट वो सारे के सारे आंसरेबल होंगे लेजिस्लेचर को। एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस। जो भी पॉलिसीज वो स्टेट में इंट्रोड्यूस करेगा, जो भी एक्शंस करेगा वो उसको सवाल करेगा, इंक्वायरी भी करेगा लेजिस्लेचर। उसको ये जवाब देने हैं, उसको सेटिस्फाई करना है लेजिस्लेचर को। एग्जीक्यूटिव ने जाहिर सी बात है ज़रूरी उसको सेटिस्फाई करेगा तभी उसकी गवर्नमेंट चल सकती है, वरना नहीं चल सकती। तो ऐसे लेजिस्लेचर जो है वो कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को। प्रेसिडेंट सर्व्स एज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। जो प्रेसिडेंट होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो सिर्फ और सिर्फ नाम का हेड होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, लेकिन उसके पास कोई पावर्स नहीं होती। हो सकती हैं थ्योरेटिकल बेसिस पे लेकिन प्रैक्टिकल पावर्स कोई भी नहीं होती किंग के पास या प्रेसिडेंट के पास। जो हेड ऑफ स्टेट कहलाता है उसके पास कोई पावर नहीं होती। जबकि इसीलिए ही कहा जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर को, यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट को चीफ एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। ये एमसीक्यूज में बार बार सवाल आता है, ये बात नोट करने वाली है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सर्व्स एज रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा और जो उसकी कैबिनेट होगी, जो उसके मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट के, वो सारे पार्ट हैं लेजिस्लेचर के और वो सारे कहलाते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। जबकि हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है और उसके पास कोई भी पावर्स नहीं होती, वो नॉमिनल हेड होता है स्टेट का। आते हैं मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कौन कौन से फ़वाइद हैं, कौन कौन से मेरिट्स हैं। सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो दोनों ही गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं। बेसिकली गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ इन्फोर्स कराना और जुडिशरी का काम होता है इंटरप्रेटिंग द लॉ के ऊपर चेकिंग बैलेंस रखना। तो ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो होते हैं वो कॉपरेशन में रहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ये जो एग्जीक्यूटिव होता है वो जवाबदेह होता है लेजिस्लेचर को, इसलिए इसको कहा जाता है कि कॉपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहलाती है। क्योंकि अगर एक भी जो मिनिस्टर है उसके खिलाफ अगर कोई भी सवाल उठता है तो ये सारे मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल होंगे, उस सवाल के जवाबदेह होंगे, वो सवाल का जवाब दे सकते हैं। ऐसे नहीं है कि जो वज़ीर दफ़ा है वो जवाब नहीं देगा, वज़ीर ख़ारिजा के ऊपर से हवाले से अगर कोई सवाल पूछा जा सकता है तो वो सवाल का जवाब नहीं देगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, सारे के सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो जवाबदेह हैं लेजिस्लेचर को, अपनी किसी भी एक मेंबर को। क्योंकि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसी भी एक मेंबर के खिलाफ अगर एक्सेप्ट कर दिया जाता है, अगर एक मेंबर के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है
वो कामयाब हो जाता है तो पूरी की पूरी जो कैबिनेट होगी वो पूरी की पूरी कैबिनेट ओवरथ्रू की जाएगी, पूरी की पूरी जो कैबिनेट होगी उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। इसीलिए ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहलाती है। हेड ऑफ गवर्नमेंट कैन बी रिमूव्ड क्विकली। हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किसी भी टाइम अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत अगर वोट्स हो जाते हैं मेजॉरिटी में, जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है उसमें मेरा मतलब है 50+1 वोटिंग अगर आ जाती है हेड ऑफ गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसकी पूरी की पूरी कैबिनेट को वहाँ पे ही रिमूव कर दिया जाता है। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये रिजिड होती है, इसको ऐसे ही नहीं रिमूव कर दिया जा सकता। क्विक डिसीजन मेकिंग, ये जो डिसीजंस करती है वो ये बहुत ही जल्दी करती है। ये एक बहुत ही मेरिट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, क्योंकि सारे के सारे मिनिस्टर्स इसके होते हैं, इसकी मेजॉरिटी होती है, तो कोई भी अगर डिसीजन लेना हो तो उसको सारे वोट्स मिल जाते हैं जो मेजॉरिटी के तहत होने चाहिए। तो इसीलिए ये क्विक डिसीजन मेकिंग भी कहलाती है। इसीलिए ये कहते हैं कि मेरिट्स हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये फ्लेक्सिबल भी है। अब फ्लेक्सिबल कैसे है कि अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि किसी कंडीशन में कोई किसी हेड को, हेड ऑफ जो गवर्नमेंट है उसको अगर हटाना पड़े, तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इसमें कोई रिजिडिटी नहीं है। जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वोटिंग के की जा सकती है या टाइम पूरा करेगा अपना जो किंग होगा या प्रेसिडेंट होगा, इसके अलावा उसी को नहीं उतारा जा सकता। लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट को किसी भी टाइम उतारा जा सकता है। इसका आप एग्जांपल ले लें, जैसे कि ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर था सेकंड वर्ल्ड वार में, उसको ओवरथ्रू कर दिया गया था और रिप्लेस कर दिया गया था वेस्टन चर्चिल से। वेस्टन चर्चिल जो था वो सेकंड वर्ल्ड वार में प्राइम मिनिस्टर बन गया था। इसीलिए ये कहलाती है कि फ्लेक्सिबल है। पीपल्स गवर्नमेंट, ये पीपल्स की गवर्नमेंट कैसे है, क्योंकि जो सारे ही मिनिस्टर्स होते हैं, जो एमएनए एमपीएस होते हैं, एमपीएस तो प्रोविंशियल लेवल पे होते हैं, लेकिन जो एमएनए सारे भी होते हैं वो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं, मेंबर्स होते हैं। और सारे जो कैबिनेट के मेंबर होते हैं वो भी एमएनएस होते हैं। जो हालांकि यहाँ तक कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा, उसी के लिए ये मस्ट कंडीशन है कि वो एमएनए लाजमी होगा। अगर वो एमएनए नहीं है तो इसका मतलब वो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है। अगर लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है तो वो गवर्नमेंट में नहीं आ सकता, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं बन सकता। ये मस्ट कंडीशन है सारे के सारे जो भी कैबिनेट के मेंबर्स होंगे उनके पास, उनके हवाले से कि वो सारे के सारे मेंबर्स होने चाहिए लेजिस्लेचर के। उसके बाद ही वो एग्जीक्यूटिव के कैबिनेट के मेंबर्स बन सकते हैं, अदरवाइज वो कैबिनेट के मेंबर्स नहीं बन सकते। तो पीपल्स जो अपने नॉमिनेटर्स, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव जो वोटिंग के तहत भेजती है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि पीपल्स गवर्नमेंट। कमिंग टू डिमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है उसके डिमेरिट्स कौन से हैं? वीक सेपरेशन ऑफ पावर्स। जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा वो, इसके लिए मस्ट कंडीशन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि वो एमएनए होना चाहिए। अगर वो एमएनए होगा तभी उसी को हेड ऑफ गवर्नमेंट और कैबिनेट का मेंबर बनाया जा सकता है, अदरवाइज इसको नहीं बनाया जा सकता। अब जो लेजिस्लेचर में कोई भी वोटिंग अगर होती है, कोई भी लॉ पास होता है, तो ये सारे एमएनएस जो होते हैं, जो कैबिनेट के मेंबर्स भी होते हैं, ये सारे के सारे मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर के। और लेजिस्लेचर में जो बिल पास करवाना होगा तो ये ज़ाहिर सी बात है, अगर उनकी गवर्नमेंट है तो उनकी मेजॉरिटी है, और अगर मेजॉरिटी है तो कोई भी लॉ वो बना सकते हैं और उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए ये वीक सेपरेशन ऑफ पावर्स है। जबकि मॉन्टेस्क्यू ने कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स दी थी कि जो तीनों पावर्स हैं गवर्नमेंट के, अगर ये तीनों या इनमें से कोई भी दो पावर्स अगर एक शख्स के पास आ जाती हैं तो जो पब्लिक लिबर्टी है उसको हार्म पहुंचता है, तो ये नहीं होना चाहिए। जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के दरमियान, इसीलिए इसी को कहा जाता है वीक सेपरेशन ऑफ पावर्स। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ मिनिस्टर्स दैट लीड्स टू द इनस्टेबिलिटी। अब जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट की मेजॉरिटी होगी तभी वो गवर्न करेगी, और उसकी मर्जी है कि वो किसी भी मिनिस्टर को उतारे और किसी भी मिनिस्टर को किसी भी टाइम पे बहाल कर दे। तो ये इसीलिए कहा जाता है फ्रीक्वेंट चेंजेस जो होती है मिनिस्टर्स में, ये इनस्टेबिलिटी लाती है स्टेट में। कमिंग टू द थर्ड डिमेरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो थर्ड डिमेरिट है वो ये है कि पार्टी गवर्नमेंट सिस्टम जो वहाँ होता है वो पार्टी गवर्नमेंट सिस्टम होता है कि ये पीटीआई का है, ये पीपल्स पार्टी का है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। तो ये पार्टी गवर्नमेंट सिस्टम हो जाता है, जो मेजॉरिटी में होगा वो रूल करेगा और जो माइनॉरिटी में होगा वो माइनॉरिटी में ही रहेगा, उसी की बात नहीं सुनी जाती। कमिंग टू द फोर्थ डिमेरिट ऑफ
parliamentary form of government leads to the cabinet dictatorship। ये एक तरह से डिक्टेटरशिप भी इसी को कहा जा सकता है, क्योंकि जो मेजॉरिटी में होगा वो जाहिर सी बात है वही लॉज इन्फोर्स करेगा जो उसके कुछ ना कुछ बेनिफिट में होंगे, कुछ ना कुछ उसकी फेवर में होंगे, और जो उसकी अपोजिशन करेगा वो तो अपोजिशन कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेजॉरिटी उसे चाहिए अपोजिशन के लिए। मेजॉरिटी किसी भी बिल को रद्द करने के लिए, इन्फोर्स न करवाने के लिए उसी को मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी तो होगी गवर्नमेंट की। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप भी है, कोई राइट नहीं होता माइनॉरिटी को कि वो अपना कोई थॉट पेश कर सके, इसीलिए इट इज़ आल्सो डिमेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कमिंग टू नेक्स्ट डिमेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इमेच्योर। ये जो गवर्नमेंट होती है ये कहते हैं नॉन प्रोफेशनल्स जो होते हैं, नॉन एक्सपर्ट्स जो होते हैं, उनकी गवर्नमेंट भी कही जा सकती है कि 5 अगर जो है वो सीनियर मेंबर्स होते हैं, एमएनएस होते हैं, 5 मिनिस्टर्स जो होते हैं वो सीनियर होते हैं, तो उनके बीच 2 या 3 जो हैं अनप्रोफेशनल इमेच्योर जो लोग आ जाते हैं, जो एमएनएस आ जाते हैं, जहाँ जो मिनिस्टर्स आ जाते हैं, वो भी उनको लीड कर देते हैं। जो 5 सीनियर होंगे वो उनको लीड करते हैं, इसीलिए इसे इट इज़ आल्सो अ डिमेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्टनरशिप, अब इसका ये मतलब है कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में आजकल चल रहा है कि पीटीआई जो है वो कहती है कि मुस्लिम लीग ने कुछ नहीं बचाया, वो सारे चोर हैं, सारा कुछ खा गए, और मुस्लिम लीग कहती है कि हमने कुछ नहीं किया, जो पीटीआई ने किया है वो गलत किया है। और पीपल्स पार्टी भी ऐसे ही पीटीआई को और मुस्लिम लीग नून को इसके ज़िम्मेदार ठहराती है। तो ये सिर्फ कहते हैं कि पार्टनरशिप है, ये एक बड़ा डिमेरिट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि मैंने नहीं किया, उसने गलत किया, मैंने तो सही किया, लेकिन वो नहीं कर पाया, वो पॉलिसीज़ अच्छी नहीं बना पाया, लेकिन उससे की पॉलिसीज़ जो मैं कर रहा हूँ और उसी की पॉलिसीज़ के तहत मुझे मुल्क चलाना पड़ता है। अभी 5 साल की जो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है इसी ने फ़लाँ गवर्नमेंट के साथ, तो मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट जब तक पूरा हो तब तक मैं न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मैं अपनी गवर्नमेंट इन्फोर्स नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये मतलब वो लेम एक्सक्यूज़ होते हैं। उन एक्सक्यूज़ की बिना पर कहा जाता है कि ये कंडीशन हो जाती है कि ये एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, जैसे कि हमारे पाकिस्तान की करंट सिचुएशन चल रही है। तो दिस वाज आवर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। टुडे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी वुड बी डिस्कसिंग द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं, व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।